So, good morning, everyone. It's such a pleasure to welcome all of you once again to this yoga session of ours. Uh, we will we will again today learn quite a few new things, and we would also practice of all that we have learned on the last Sunday. So शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह विद प्रेयर. दोनों हाथों को जोड़ लें. ओमकार के लिए 3 बार ओमकार करना है. लंबी गहरी श्वास लेनी है और उसको छोड़ के लंबी गहरी श्वास लेके फिर ओमकार के साथ में दिन की शुरुआत करेंगे. लंबा गहरा श्वास अंदर ले लें. एक बार और. One more time. गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. महामृत्युंजय. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ॐ सेना भवतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु महावीर्दिशावहि. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. So friends, with this prayer we will start today's session. As always, we will start with some sukshma vyayam. So you can please stretch both your feet together and rotate them from left to right. Rotate them from left to right. So how was your experience from on last Sunday, everybody? It was wonderful. Did you enjoy? How was the day? Did you feel the difference? Yeah. Did you feel that energy levels were high relatively? Okay, very good. Opposite direction? Opposite direction, very nice, very good. And this is just to prepare our body for absorption of the cosmic energy through the process of pranayama, which is your breathing tactics. अब दोनों पंजों को आगे स्ट्रेच करें और फिर पीछे स्ट्रेच करें. अप डाउन अप डाउन अप डाउन. दोनों पंजों को आगे पीछे करें. वेरी नाइस, वेरी गुड. और अब खाली उंगलियों को करें. जस्ट वो ओनली दी फिंगर्स. आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. वेरी गुड. Now keep both your hands on your right side and twist your back as much as you can comfortably. दोनों हाथों को दाएं तरफ रखें और जितना ज़्यादा आप राइट को अपनी बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं करें. एंड कम बैक एंड डू इट ऑन द अपोजिट साइड. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर आवर बैकबोन, फॉर आवर शोल्डर्स, फॉर आवर वेस्ट. For all of them you can feel the stretch, and the stretch removes the position of all the stress that we have in our joints. And come back. Very nice. Now pull your right leg inside and hold your
fingers of your left leg with your left hand. Take the right hand behind around your waist and try and touch your left knee with your head. Make an attempt as much as you can comfortably. Remember, yoga is not competition, it's not championship, it's not a race, it's not a contest. Yoga is to get connected with the supreme power, and therefore you must always practice yoga with lot of joy, bliss and ecstasy that automatically comes with the practice of yoga, and come back. Very nice. And do it with the other one. So now pull your left leg inside and with the right hand hold your right foot. Take your left hand behind your waist and try and touch your knee, right knee with your forehead. Bend as much as you comfortably can, and that should be fine. Do not overstretch. Do as much as you can comfortably. Very good. And come back. Now with both the hands, so hold both your feet together with both the hands and bend your head forward and as much as you can comfortably. Remember, yoga, meditation and pranayam are the natural tools for reversing all the ailments that a person may get because of his sedentary lifestyle. When you practice yoga, meditation and pranayam, it will always keep you away from all the diseases and ailments. And in case if somebody has got any one of them, then with the regular practice of yoga, meditation and pranayam, all those ailments start reversing and come back. And now we do the grinding posture, right? I am sure you remember. So this is the posture to reduce your जो अपना टमी है उसको शेप में लाने के लिए बहुत बढ़िया है. एक चक्कर मारेंगे तो 10 ग्राम वजन कम होता है ना. So let's start doing it actually. So start from left to right and do it as comfortably as you can and make a as big a circle as you can. Very good. Very good. एक चक्कर मारा 10 ग्राम वजन कम. 10 चक्कर मारे 100 ग्राम कम. 100 चक्कर मारे 1 किलो कम और 1000 चक्कर मारे 10 किलो कम. ज़्यादा मत करना नहीं तो गायब होने के चांसेस हैं. वेरी गुड. वेरी नाइस. एंड नाउ डू इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. Very good. And you can see the stretch in all the joints that we have in our body. And remember, joints are where the stress gets deposited over the life. And if it is not cleaned from time to time, then it starts giving trouble in later on. And relax. Very good. अब आराम से बैठ जाएं. और अब क्या करना है, अब दोनों पैरों को मिला लें आपस में. Join both your feet together. And this is Patangasana, butterfly posture. Pull it inside as much as you can. जितना आप आसानी से उसको अंदर पुल कर सकते हैं. दोनों पैरों को अंदर पुल कर लें. Keep your back straight as much as you can. And do butterfly Patangasana. So अपने दोनों घुटनों को तितली की तरह मूव करें, ऊपर नीचे and try that you are able to touch the floor with your knees if you can. If you can't, it's all right, but keep your back straight. ये भी एक बहुत ही मस्ती भरा आसन है. और जैसा कि मैंने बताया था, बचपन में हमने एक तितली को देखा, हम उसके पीछे भाग लिए क्योंकि एक अलग ही आनंद था, एक अलग मस्ती थी. तो वो सेम joy and bliss you will get through this. And now bring your leg forward. Try and touch your forehead with your try and touch your feet with your forehead if you can comfortably. And come back. Very nice. देखो ये posture के बहुत सारे फ़ायदे हैं. And literally
हमारा जो बॉस है जिसके लिए हम काम करते हैं, या फिर अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमारे क्लाइंट है जिसको हम सर्विस करते हैं, हम उसको कितना मस्का लगाते हैं, कितना चूना लगाते हैं, कितनी उसकी ये करते हैं, क्यों? ताकि वो खुश हो, है ना। तो इसके लिए हम लाइफ में क्या करते हैं, कितने लोगों के पैर पड़ते हैं, लेकिन जो पैर, हमारे दोनों पैर जो हमको 90-100 साल तक लेके घूमेंगे, और ऐसा भी नहीं कि कभी आराम करते हो, ऐसा नहीं कि हाँ आज पैर बोलेंगे नहीं, आज मुझे लेके मत जाओ, पड़ोसी के पैरों को लेके चले जाओ, खुद के पैरों, उन पैरों का हम कभी कृतज्ञता जाहिर नहीं करते। तो ये जो पॉस्चर है, दिस इज़ टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू योर ओन फीट। एंड रिमेंबर, इफ़ यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू योर ओन फीट, योर फीट विल कैरी यू फॉर होल ऑफ योर लाइफ विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो जो लोग नहीं छू पाए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ माउंटेन कैन नॉट गो टू मोहम्मद, देन ऑफ कोर्स मोहम्मद कैन गो टू माउंटेन। सो इसको दोनों हाथों से पकड़ लें, एंड आई एम श्योर यू कैन कंफर्टेबली टच योर फोरहेड विद योर लेफ्ट फुट एंड कम बैक, and now do the other things, do the same thing with the other one. And come back, very good. और यहाँ से सीधे शिफ्ट करेंगे शिशुपालासन, है ना। बच्चों को खिलाना कितना आनंद की बात होती है। अब देखो क्या है, ये लाइफ इतनी सिंपल है और इतनी मज़ेदार है, और ज़िंदगी में मज़ा छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा है, बड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम है। जितनी चीज़ बड़ी होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, छोटी चीज़ों में ज़्यादा मज़ा है। पहली बार आप पिताजी बने, माँ बने, जॉब में थे, दिन भर जॉब में तान तनाव, घर लौटे, 4-5 महीने का बच्चा, जैसे ही उसने आपको देख, डोर की घंटी बजी दरवाजे की, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, हाँ। और उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, एंड लपक के आपने उसको गोदी में ले लिया, और जैसे ही आपने उसको गोदी में लिया और उसको खिलाना शुरू किया, तो याद करिए आपका तान तनाव कहाँ गायब हो गया, पता भी नहीं पड़ा एक्चुअली, है ना। तो सेम थिंग इज़ हियर व्हेन यू डू दिस शिशु पालन पोस्चर, उसमें भी यही है कि ये आपके तान तनाव को दूर करता है। इट टेक्स अवे ऑल द स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ योर लाइफ। सो प्ले, और लेकिन याद है, बच्चे के साथ में खेल रहे हो, चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे को डर लग जाएगा, बोले क्या बात है, एकदम पापा बहुत सीरियस होकर खिला रहे हैं। तो वेरी नाइस, कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। नाउ आपके खिलाने से बच्चा खुश होकर सो गया है। सो बिफोर यू प्लेस हिम ऑन द बेड टू स्लीप, plant a nice sweet kiss on his cheek and do it one more time. Very good. And we do it with the other one, क्योंकि हमारे पास ट्विंस हैं। एक बच्चे को खिलाया, एक को नहीं खिलाया तो दूसरा वाला नाराज़ हो जाएगा, तो अभी दूसरे बच्चे को भी गोदी में ले लें और उसको भी उसी प्रेम से खिलाना शुरू करें, मस्ती के साथ। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड posture for your shoulder, for your waist, for your elbows, for your fingers, for your wrist, for your ankle. देखो, आप महसूस कर सकते हैं कि जितने भी जोड़ हैं हमारे शरीर में, एज मच एज इवन योर नेक इज़ ऑल्सो गेटिंग एक्सरसाइज इन दिस शिशुपालासन पोस्चर। सो करते रहिए मस्ती के साथ, रोटेट ऑन बोथ साइड्स। एंड रिमेंबर, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस डिपॉजिट होता है वो जॉइंट्स पे डिपॉजिट होता है, और अगर हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें तो ये जो जॉइंट्स हैं हमारे, वो हमको बाद में तकलीफ़ नहीं देते हैं। So now the second baby is also gone to sleep. So before placing him on the bed, plant a nice sweet kiss on his cheek, and do it one more time. Very good, fantastic. So with this, let us move to the now pranayam. So we would start with the pranayam, Vibhag pranayam. We will start today new pranayam. Last time we did 2 different pranayams, or maybe we will practice the one that we did last time, that is mudra pranayam. So mudra pranayam, sit in vajrasan. हाँ, और देखिए, वज्रासन में अगर आप आसानी से बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वज्रासन में बैठ के ही करना है। वज्रासन में करने का एडवांटेज ये है कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड, इट ऑटोमेटिकली गेट्स स्ट्रेटन्ड अप एक्चुअली। और जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, द एनर्जी विच इज़ लाइंग इन द इनएक्टिव पोजिशन इन द मूलाधार ऑफ आवर मूलाधार चक्र, सो उसको
राइज होने के लिए ईजी होता है. So even if you are sitting in a Sukhasan, this is Sukhasan, just make sure that your back is straight actually, right? And so we will start the mudra pranayam with the first mudra. This is the first mudra, right? This is the first mudra, and place both your palms in the mudra on middle of your thighs, your back straight, and smile on your face. Remember, if you can't make it, you must fake it, but you must always have a smile on your face, because smile on our face is an indicator that we are happy, and it is the happiness for we do everything in our life. So इसमें क्या करना है, सारे ही ब्रीदिंग टेक्निक्स में, सारे ही प्राणायाम में हमें लंबी गहरी श्वास अंदर लेनी है, और जितनी लंबी गहरी श्वास अंदर ले सकते हैं उतनी लंबी गहरी श्वास अंदर लेनी है, और उसके बाद उतनी ही लंबी श्वास बाहर छोड़नी है. एंड वाई डू वी डू दैट? Why do we have to fill up our lungs to the extent of more than 100%? Because all the organs that we have in our body, energy, the food is the energy for the food, or the energy for all the organs that we have in our body is oxygen. Normally our breathing is very shallow, and normally what we do, we fill up our lungs only to the extent of 20%, 30%, 40%, and therefore organs in our body do not get enough oxygenation, and that is why they start malfunctioning. And when they start malfunctioning, it results into some ailment or the other, and that is why we have to fill up the lungs to the extent of 100%, more than 100%, एंड फिर श्वास को बाहर निकालना है. तो जैसे ही आपने श्वास को अंदर लिया, लंग्स को 100% से भी ज़्यादा भरा, तो आपके लंग्स क्या करेंगे, आपके लंग्स उस श्वास में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगे. अब ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन थ्रू द सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन will reach to every cell of our body, and that means there is a supply, food supply to all the organs that we have in our body to the 100% of their requirement. And if their food requirement, oxygen requirement, energy requirement is fulfilled to the extent of 100%, obviously they start getting fully oxygenated and they start functioning as they should. And in case if somebody has an ailment, that ailment starts reversing. And we have to do it 7 times. लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर. कंटिन्यू रखें, जारी रखें. In the pranayama, there is also something called Rechak and Kumbhak. So maybe next time whenever we have this session, we would all do all these pranayams with Rechak and Kumbhak also. But for today we will do simple breathing technique, लंबा गहरा श्वास अंदर और लंबा गहरा श्वास बाहर. And relax. And relax. So what you have to do is, for every mudra pranayam, you have to do 7 cycles. That means 7 times inhale and 7 times exhale. So that was the first mudra pranayam. And remember, so whenever you are doing breathing technique, pranayama, when you are inhaling and exhaling, by default have a thought on your mind. All my negativities are going out. All the positivity of the entire universe is coming inside me. And remember, it truly happens. It truly happens. So जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम भाव करते हैं, चीज़ें उसी तरह से होनी शुरू हो जाती हैं. So let us do the second pranayam, or second mudra pranayam. This is the second mudra pranayam. Right? So this is how you will do it. And keep both your palms on middle of your thighs and back straight, and together we start 7 times the second mudra pranayam. Start. लंबा गहरा श्वास अंदर, जितना लंबा गहरा श्वास अंदर ले सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास अंदर लें, और उसके बाद उसको जितना लंबा बाहर छोड़ सकते हैं उतना लंबा बाहर छोड़ें. और जब श्वास को अंदर ले रहे हैं, मन में एक भाव रखें, all the positivities of this universe, of this cosmos are coming inside me,
And when you are exhaling, have a thought on your mind. All my negativities, problems, hardships, challenges, botherations, barriers, roadblock, inhibitions, hesitations, all the negative emotions of my body and mind are going out with every breath that I am exhaling. And continue. लंबी गहरी श्वास के साथ और लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ने के साथ जारी रखें. Remember, the Parmeshwar has sent us on this earth not to live our life in misery. He has sent it on this earth to live our life in bliss, ecstasy, and happiness. And for that, we do not need anything. We truly do not need anything. We only need the right approach of thinking, and that's it. And that's it. And knowing fully well that when we come on this earth, we would mess up our life, and that is why the Almighty has given all these tools to us: yoga, meditation, and pranayam. So, with the help of yoga, meditation, and pranayam, we can reverse whatever mess that we create in our life and also ensure that we don't create this mess any further and live our life in bliss, ecstasy, and happiness. जब आपके 7 साइकिल पूरे हो जाए, you can relax. So with the completion of the second 7th cycle, you can relax. Let's now go over to the third mudra. So put your thumb inside, close the fist. This is your third mudra. And once again, keep your both your fists on middle of your thighs, and a smile on your face. And this time together we will do 7 cycles of third mudra pranayam. So मस्ती के साथ, आनंद के साथ शुरू करें थर्ड मुद्रा प्राणायाम. लंबा गहरा श्वास अंदर और लंबा गहरा श्वास बाहर. Remember, what is meditation? Meditation is nothing but taking care of your breath, being alert about your breath, being careful about your breath. And why you and I need to be careful about our breath? Because in this body, where are we? We are nowhere in the body but in the form of this breath. Where I am in my body? I am in my body in the form of this breath. And remember, this breath is not merely a breath, it's a magnetic field. It's a magnetic field. On this breath that we cannot see at all, on this breath, memories of past so many births are recorded. And based on the karmas that I have done in my past lives and also in this life, everything unfolds in my life accordingly. Good karma, good result. Bad karma, bad result. And remember, we cannot cheat the universe and the supreme power. So whatever we do, it gets recorded, and we have to suffer the consequences accordingly. Take care of your breath. If you take care of your breath, your thoughts become positive. Your thinking becomes positive. When the thinking becomes positive, the karma also becomes positive. And let's do a last times. The 7th one. Take a deep long breath in. And relax. So जो लोग वज्रासन में बैठते हैं, अगर बीच में आपको लगे कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो यू कैन ऑफ कोर्स रिलैक्स, सिट इन दी नॉर्मल सुखासन और पद्मासन और अर्ध पद्मासन एंड कंटिन्यू. सो रिमेंबर, इट्स नॉट ए हार्ड एंड फास्ट कि एक बार वज्रासन में बैठे तो पूरा वज्रासन में ही करना है. नहीं, ये बात अलग है कि आप जब करना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको ये जो वज्रासन है बहुत आसान लगने लगेगा. और आसान है, वो शुरू में लगता है, 1-2 दिन थोड़ा लगता है मुश्किल,
बट एक दो दिन करने के बाद ऑटोमेटिकली योर बॉडी एंड योर फीट और योर लेग्स गेट ट्यून टू इट. Now we will do the fourth mudra pranayam. So in fourth mudra pranayam, what do you do? Put your fingers inside and keep your thumbs up. So these thumbs up, and once again, keep both your fists with thumbs up situation, and again start the fourth stage of mudra pranayam. Keep a smile on your face. मस्ती के साथ, आनंद के साथ शुरू करें चौथा फोर्थ पार्ट ऑफ मुद्रा प्राणायाम. कंटिन्यू. लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ना है. जितना लंबा गहरा श्वास अंदर ले सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास लें, और फिर जितना लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ें. ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पूरी साइंस है. इज़ अ कंप्लीट साइंस. जब आप श्वास को अंदर लेते हैं, लंग्स को पूरा भरते हैं, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में 70,000 कोशिकाएं हैं. There are 70,000 cells in our body. So all these cells that we have in our body, all these cells, irrespective of the number, all these cells get fully oxygenated. And when they get fully oxygenated, they become fresh. And that reflects in alertness, in smartness, in energy, in enthusiasm, in so many positive ways. And also remember, regular practice of pranayama helps us in slowing the aging process. So आप देखेंगे जो लोग रेगुलरली प्राणायाम करते हैं, वो उनका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है, और जो उसकी वजह से बॉडी अलर्ट रहती है, एनर्जी का लेवल हाई होता है. एनर्जी का लेवल हाई है, बॉडी अलर्ट है, एंथुसियाज्म है. बिकॉज ऑफ ऑल दैट you are able to achieve much more in your life than what a person who would not be practicing the pranayama. So continue, and last 2 times together. So let's do it. लंबा गहरा श्वास अंदर, और उतना ही लंबा गहरा श्वास बाहर. One more time. And exhale. Excellent. Very good. Fabulous. So हर बार 7 cycles every time for every mudra pranayam 7 बार 7 cycle करने हैं. Now we come to the last stage of the mudra pranayam. इसमें क्या करना है? इसमें दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद कर लें. Keep your thumb inside and close your fist. Keep your thumb inside and close your fist, right? And join both your fists like this, and keep your elbows straight. And remember why keep your elbows straight, because that helps to keep your back also straight. So अपने elbows को एकदम सीधा कर लें, है ना, और एकदम सीधा करके वो same you have to inhale 7 times and then you have to exhale 7 times. लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है, लंबा गहरा श्वास बाहर ले छोड़ना है. और जब आप श्वास को अंदर लेते हैं, 4 कंटिन्यू करें. जब आप श्वास को अंदर लेते हैं, keep a thought always on your mind. All the positivity of this universe is coming inside me. The energy of the cosmos is coming inside me, and you can feel it's truly coming inside every one of us when we are doing practice of pranayama. और जब श्वास को बाहर छोड़ें, उस समय मन में एक भाव रखें. All my negativities, my problems, challenges, difficulties, hardships, hesitations, inhibitions, all the negative emotions that I have in my body and in my mind, all the toxins that I have in my body are going out with every breath that we exhale. And continue.
जारी रखें, कंटिन्यू रखें, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम भरे भाव के साथ कंटिन्यू रखें द फिफ्थ स्टेज ऑफ मुद्रा प्राणायाम. एंड रिलैक्स, और रिलैक्स हो जाए. वेरी नाइस, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू हैव रियली डन एक्सीडेंटली वेल. फिर से एक बार पैरों को फैला लें और सूक्ष्म व्यायाम करें. कि थोड़ा सा ये जो बॉडी में, क्योंकि हमारा शरीर इज़ यूज टू नहीं है ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन, तो उसके लिए क्या करें, बीच बीच में अपने हाथ पैरों को, अपने पंजों को थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं. चाहे तो दोनों घुटनों को शेक भी कर सकते हैं. यू कैन शेक योर बोथ योर नीज एज वेल. एंड फिर से एक बार पंजों को आगे पीछे करें. टेक योर both your feet backward and forward, and then only the fingers. Very good. And now we are ready for the next stage of the pranayam. And the next stage of the pranayam is what, everybody? What is the name of the next pranayam, everyone? कपालभाति. कपालभाति, एब्सोल्युटली कपालभाति. तो देखिए, बाबा रामदेव से किसी ने पूछा कि कपालभाति के क्या फ़ायदे हैं. तो बाबा रामदेव ने कहा कि कपाल यानी कि आपका माथा, भाति यानी कि चमक. तो जब आप कपालभाति करते हो तो आपके माथे पर, हमारे माथे पर चमक आती है. इट ग्लोज. एंड इट्स रियली अ फैक्ट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम रेगुलरली, our skin also becomes much better than what it would appear with the help of whatever that we apply. So we will do the second pranayam, which is Kapalbhati. सभी को मालूम है. So क्या करना है इसको, अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठें. दिस इज़ योर पद्मासन, दिस इज़ योर लोटस posture. So अगर आप आसानी से बैठ सकते हैं पद्मासन में, ज़रूर बैठें, बिकॉज दिस इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर नीज़. तो ये नीज़ है ना, इसके लिए बहुत अच्छा है. और अगर पद्मासन में बैठना मुश्किल हो, देन यू कैन सिट इन अर्ध पद्मासन. अर्ध पद्मासन यानी कि आपका जो दायां पैर है वो नीचे रहेगा और बायां पैर ऊपर रहेगा. अर्ध पद्मासन. इट कैन बी अदर वे ऑल्सो. सो यू कैन ऑल्सो डू अर्ध पद्मासन. कीप योर लेफ्ट लेग डाउन एंड राइट लेग अप. So there is no hard and fast rule. And Ardha Padmasan is never a problem for anyone. Everybody can sit in Ardha Padmasan. It's not a challenge. It's not a challenge, except in Europe, where the stiffness in the body is so hard. As I was telling you, I was doing this program in Luxembourg. A person who came for attending these program, on the first day, he could sit only like this. He could not sit in Sukhasana. Ardha Padmasan छोड़िए, दूर की बात हो गई. Ardha Padmasan भी नहीं, Sukhasan भी नहीं. He would sit like this. But with the practice, in 2-3 days time, when I saw him, he was sitting comfortably in like this. So this is what we will do. Advantage of sitting in Padmasan or in Ardha Padmasan is that your back is straight actually, right? And remember, whenever you are practicing these breathing techniques, make sure that your back is straight. So let us take the position, and both your palms in Dhyana Mudra. This is Dhyana Mudra. Both your palms in Dhyana Mudra. Place them on your thighs, and together we will do Kapalbhati. Start. Either you can continue with inhaling, with throwing your breath out from your nostril, and remember, you just have to throw your breath out. Speed should be once in 1 second. It's not to be done too fast. It's not to be done too slow. तो हमारी जो रफ्तार है वो बनी रहे 1 सेकंड में 1 बार. सिर्फ श्वास को नोस्ट्रिल से बाहर फेंकना है
श्वास लेने की परवाह नहीं करनी है. That will happen automatically. And every time when you are throwing your breath, have a thought on your mind, all my negativities, all toxins of my body are going out with every breath that I am throwing. And continue मस्ती के साथ, आनंद के साथ, जॉय के साथ, ब्लिस के साथ कंटिन्यू कपालभाति प्राणायाम. मस्ती के साथ, आनंद के साथ टोटली 100 स्ट्रोक्स लगाएंगे. और देखिए 100 के ऊपर मत जाइए. आपको 100 कपालभाति के स्ट्रोक्स करने के लिए 100 सेकंड्स लगेंगे. तो 100 के ऊपर मत जाइए. It just take 1.5 month, 1.5 minute to complete the 100 strokes. And relax. अब सवाल ये है कि this question must be coming in your mind as to how many Kapalbhati we should do. See, typically when you are doing practicing on your own, you should do at least 300 Kapalbhati. So 300 times you must do the Kapal, 300 strokes you must take minimum. And in case if somebody has got any problem, any health related problem of any kind, then you can increase the Kapalbhati strokes. Do it as much as you can. Only thing that we need to remember, the timing of the Kapalbhati and Anulom Vilom must always match. So you should, अगर आप 5 मिनट कपालभाति करते हैं तो अनुलोम विलोम आपको कम से कम 5 मिनट करना ही करना है. और दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट्स इट. सो और जितना कपालभाति करेंगे उतने आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, वो सब रिमूव होते हैं. एंड नाउ वी विल डू दी नेक्स्ट प्राणायाम. एंड द नेक्स्ट प्राणायाम इज़ बाह्य प्राणायाम. So what we do in Bahya Pranayam, as we learned it on the in the second session that we had. So in Bahya Pranayam, लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना है. और उसके बाद त्रिबंध लगाने हैं. त्रिबंध यानी कि पहला बंध इसको बोलते हैं मूल बंध. मूल बंध यानी कि हमारा जो एनस है, हमको उसको क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ पुल करना है. तो जैसे ही हम एनएस को ऊपर की तरफ पुल करेंगे मूल बंध लग जाएगा. उसके बाद हमको उड्डयन बंध लगाना है. उड्डयन बंध यानी कि जो हमारा नाभि है वो नाभि को हमको अंदर की तरफ पुल करना है. तो ये उड्डयन बंध हो गया. उसके बाद हम जालंधर बंध लगाएंगे. जालंधर बंध यानी कि हमारी चिन को हम चेस्ट से टच करेंगे. सो दैट बिकम्स दी जालंधर बंध. दिस इज कॉल्ड त्रिबंधा. दी वाई त्रिबंधा? बिकॉज जैसे ही आपने श्वास को अंदर लिया, आपके लंग्स ने उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया. और फिर आपने त्रिबंध लगा दिए. तो त्रिबंध लगाने से जो आपका ये जो पोर्शन है उसमें वो सारी जो ऑक्सीजन है वो है इकट्ठी हो गई है और उसको बाहर जाने के रास्ते आपने बंद कर दिए. तो ये जो एनर्जी है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन करती है. एंड दैट इज़ टू गिव काइंड ऑफ अ बूस्टर for the cleansing process. I'll do it once and then we'll do it together. तो मैंने एक लंबा गहरा श्वास अंदर लिया बाह्य प्राणायाम के लिए और बाहर छोड़ दिया. मूल बंध लगाया, उड्डयन बंध लगाया, जालंधर बंध लगाया. जालंधर बंध को रिलीज किया.
उड्यान बंद को रिलीज़ किया, मूल बंद को रिलीज़ किया. सो दिस इज हाउ यू डू बाह्य प्राणायाम, राइट? बाह्य प्राणायाम. सो विल डू इट टुगेदर 2 times. टेक अ डीप लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर. मूल बंद, उड्यान बंद, जालंधर बंद. जालंधर बंद को रिलीज़ करें, उड्यान बंद को रिलीज़ करें और उसके बाद में मूल बंद को भी रिलीज़ करें. सो जैसे जब आपने मूल बंद लगाए तो पहले आपने मूल बंद लगाया, फिर आपने उड्यान बंद लगाया और उसके बाद आपने फिर जालंधर बंद लगाया. और जब आप उसको रिलीज़ करेंगे तो रिवर्स में रिलीज़ करेंगे. जालंधर बंद को रिलीज़ करेंगे, फिर उड्यान बंद को रिलीज़ करेंगे और उसके बाद में फिर मूल बंद को भी रिलीज़ करेंगे. और कितना देर तक आपको रुकना है? जब आप इंडिपेंडेंटली जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं टू एज मच टाइम एज यू कैन कंफर्टेबली एंड कन्वीनियंटली. वाइल वी आर डूइंग इट टुगेदर वी जस्ट डू इट अप टू अ काउंट ऑफ 20. सो एक बार फिर से एक लंबा गहरा श्वास अंदर बाह्य प्राणायाम के लिए और बाहर. मूल बंद, उड्यान बंद एंड जालंधर बंद. जालंधर बंद को रिलीज़ किया, उड्यान बंद को रिलीज़ किया और मूल बंद को भी रिलीज़ किया. सो दिस इज द थर्ड प्राणायाम विच इज़ नॉन एज बाह्य प्राणायाम. नाउ विल डू अग्निसार. सो व्हाट यू डू इन केस ऑफ अग्निसार? अग्निसार में आप क्या करते हैं? आप श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास को लेने के बाद आपके जो लंग्स हैं उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे. और फिर आपको क्या करना है? आपके स्टमक को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, पुल इन पुल आउट, पुल इन पुल आउट, पुल इन पुल आउट, पुश आउट, पुल इन पुश आउट, पुल इन पुश आउट. दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट. तो जब आप ये करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये प्राणायाम करने, अग्निसार करने से हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे ये पोर्शन में वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपेंड होंगे. तो उनकी नेचुरली एक्सरसाइज होती है ऑफ द ऑर्गन्स दैट वी हैव इनसाइड, राइट? एंड दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ दोज ऑर्गन्स. सो देन अगर आप लीवर की एक्सरसाइज बराबर करेंगे अग्निसार से तो आपके लीवर की एक्सरसाइज बराबर होगी. और आपको मालूम है कि हमारा जो लीवर है वो कितने हार्मोन सेक्रीट करता है? एनी आइडिया हाउ मेनी हार्मोन्स the liver is producing? The liver that we have in our body, it produces 500 different kinds of hormones. 500. So remember 500, one organ is doing it. So when you do Agnisar, it improves the efficiency of your liver and lungs, intestine, pancreas, everything that we have in our body. तो पहले मैं एक बार करके दिखाऊंगा, then we'll do it together. तो मैंने अग्निसार के लिए श्वास अंदर लिया और उसको पूरा बाहर छोड़ दिया. नाउ अग्निसार. एंड रिलैक्स. तो जितना देर आप आराम से कर सकते हैं, कन्वीनियंटली कर सकते हैं उतना देर तक. या यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ. तो आपने श्वास अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया, होल्डिंग योर ब्रेथ, योर स्टमक इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट. सो लेट अस डू इट 3 times टुगेदर. एक लंबा गहरा श्वास अंदर अग्निसार के लिए और बाहर फेंक दें. अग्निसार. And relax. And relax. Take another deep long breath in for Agnisar. और छोड़ दें. Agnisar. And relax. And let's do it one more time.
excellent. I think every one of you have done it so beautifully well, and I'm sure all of you can experience कि जब आप अग्निसार करते हैं तो हमारे स्टमक में जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक्सपेंड होते हैं, एक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन सब की एक्सरसाइज होती है. बिकॉज ऑफ दैट their efficiency increases, and when their efficiency increases it results into release of two very interesting hormones, and that is, one is serotonin and the other one is endorphin. Both endorphin is good for elevation of our mood. So when your body is secreting enough endorphin, you feel good. So remember, and this is what you would experience whole day today. After practice of pranayama, meditation and yogasana, there is increased supply of endorphin, and that's the reason why you feel good after practicing yoga, meditation and pranayama. It also supplies serotonin. And remember, serotonin is another very interesting hormone that our body secretes. And serotonin is responsible for us to become a high achiever. So all the people that we find across who are high achievers, they are able to achieve higher heights in their life is because of the serotonin. The level of serotonin is very high in their system. So now we will move to the fifth pranayam, and the fifth pranayam all of us know is Anulom Vilom, right? So we will do Anulom Vilom together, and keep your left thigh, left palm in mudra position on middle of your thigh. Keep your back straight. आपकी जो स्पाइनल कोड है वो सीधी रहेगी, और राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है. दिस बिकम्स वन साइकिल. दिस बिकम्स वन साइकिल, एंड कीप ऑन डूइंग इट. Keep on doing it. Keep your back straight, and always have a smile on your face. Whenever you are doing pranayama, or when you are not doing pranayama, doesn't really matter. Smile should always remain on our face. If we can't make it, we should fake it, but we must always have a smile on our face, because that is the indication that we are happy. Keep on doing it. Keep on doing Anulom Vilom Pranayama, and remember, every time when you inhale, have a thought on your mind. Energy of this cosmos is coming inside me. And when you are exhaling, have a thought on your mind. All my negativities, problems, hardships, challenges, difficulties, roadblocks, barriers, hesitations, inhibitions, all the negativities that I have in my body or in mind, all of them are going out with every breath that I exhale. Continue Anulom Vilom Pranayama. लंबी गहरी श्वास अंदर लेनी है, और उतनी ही लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़नी है. श्वास को लेते समय मन में भाव रखें, ऑल द पॉजिटिविटीज ऑफ द यूनिवर्स आर कमिंग इनसाइड मी. श्वास को बाहर छोड़ते समय ध्यान भाव रखें, all my negativities and toxins are going out of my body and mind. And continue Anulom Vilom Pranayama. मस्ती के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ.
जारी रखें अनुलोम विलोम प्राणायाम. Because of our sedentary lifestyle, because of our lack of taking care of our body and mind on a regular basis, हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना. पूरे शरीर में ये तीनों नाड़ियों के थ्रू ऊर्जा का वितरण होता है, ऊर्जा की सप्लाई होती है, ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. Because of our sedentary lifestyle, at times blocks get created in this distribution of energy through ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना. और जहाँ ब्लॉक क्रिएट हो गया, उसके आगे का जो ऑर्गन है उसको एनर्जी की सप्लाई बंद हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई दैट ऑर्गन स्टार्ट्स मेल फंक्शनिंग. व्हेन दैट organ starts malfunctioning, it results into some ailment or the other in our body. Through the Anulom Vilom Pranayam, it helps us to remove those blocks. And when we remove those blocks, supply of energy to that organ also is resumed. And since the supply to that organ is resumed, automatically that organ also starts getting oxygenated and starts functioning the way it should. कंटिन्यू रखें, जारी रखें अनुलोम विलोम प्राणायाम. जितना लंबा गहरा श्वास अंदर ले सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास लें और उतना ही लंबा बाहर छोड़ें. मस्ती के साथ, आनंद के साथ महसूस करें कि ऊर्जा आपके शरीर में, आपके मन में उतर रही है. यू कैन फील द एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ एंटरिंग योर बॉडी थ्रू योर सहस्रार चक्र. जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, महसूस करें कि इस अस्तित्व की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है फ्रॉम टॉप ऑफ योर हेड, जहाँ पर कि हमारा सहस्रार चक्र है, वहाँ से वो आज्ञा चक्र पर आई और इस तरह से एक एक करके 7 चक्रों से होती हुई वो मूल बंद तक पहुँची वो ऊर्जा. और वहाँ पहुँच के उसने वहाँ जो कुंडलिनी शक्ति बैठी है उस कुंडलिनी को एक्टिवेट किया है. तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी राइज हो रही है. यू कैन फील द एनर्जी इन योर बॉडी फ्रॉम द कुंडलिनी. एंड डू इट 2 more cycles and then we'll close it. लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया और फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल किया. और उसके बाद में एक्सहेलिंग फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल you can relax. So this was your 5th pranayam, that is अनुलोम विलोम प्राणायाम. पैरों को फैला लें एक बार फिर से और दोनों पैरों को पंजों को मिला के घुमाएं और साथ ही दोनों पंजों को घुमाते रहें और दोनों हाथों की मुट्ठियों को भी रोटेट करते रहें. दिस इज़ ऑप्टिमाइजेशन. पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है और हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है, राइट. एंड उसके बाद में दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पर रख लें और पैरों की पंजों को आगे पीछे करते रहें. जैसे आप अपने शोल्डर्स को रोटेट कर रहे हैं उसी तरह से दोनों पंजों को भी आगे पीछे करते रहें. वेरी नाइस, वेरी गुड, एंड रिलैक्स. नाउ वी विल डू दी 6th प्राणायाम विच इज़ नोन एज उज्जेय प्राणायाम. उज्जेय प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं? उज्जेय प्राणायाम के ये फ़ायदे हैं कि अगर किसी को क्रॉनिक कोल्ड है, कफ है, क्रॉनिक यानी कि दुनिया भर की ट्रीटमेंट कर लिया लेकिन जुकाम है, खांसी है, वो जाने का नाम नहीं ले रही. प्रैक्टिस उज्जेय प्राणायाम रेगुलरली 8-10 times और इवन मोर इफ़ यू कैन. जो chronic cold and cough will disappear just in few days.
The second advantage or benefit of Ujjayi Pranayam is it makes your voice powerful. So somebody who is a public speaker or who is into training or who is in a leadership position, one thing that you need a voice which is authoritative. Not that you want to be authoritative, but your voice should reflect power. So Ujjayi Pranayam also improves the quality of the breath that you have. One more benefit of Ujjayi is it helps to in thyroid. तो जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए उज्जय प्राणायाम एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है. एंड आई नो मेनी केसेस द डॉक्टर आस्क द पर्सन दैट यू विल हैव टू टेक a tablet every day for thyroid. And this person started practicing Ujjayi Pranayam 10 times, 15 times, 20 times. जब भी टाइम मिले you do Ujjayi Pranayam. Thyroid disappeared. And this can happen. And जो सबसे मेन एडवांटेज है उज्जय प्राणायाम का वो ये कि अगर किसी को खर्राटे लेने की समस्या है तो ये खर्राटों को भी बंद करता है. अब आप बोल सकते हैं कि मुझे उज्जय करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खर्राटे नहीं लेता हूँ या मैं खर्राटे नहीं लेती हूँ. तो वेरी गुड. लेकिन अगर आपके जो पार्टनर हैं अगर उनको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उज्जय सीखिए, उनको सिखाइए, उनके खर्राटे बंद होंगे तो आप भी आराम से सो सकेंगे. दैट इज़ ये उज्जय प्राणायाम. उज्जय प्राणायाम हम क्या करते हैं? उज्जय प्राणायाम में हम श्वास लेते समय हमारे जो विंड पाइप है उसको कंस्ट्रिक्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं. याद है ना आपको? जैसे हम कभी किसी गार्डन में प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, प्लांट दूर है, बीच में कुछ है, हमारा पाइप नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करते हैं? पाइप की जो मुंह है हाउस पाइप को उसको थोड़ा सा दबा देते हैं. तो जब दबा देते हैं तो पानी का प्रेशर ऑटोमेटिकली वो प्लांट तक पहुंच जाता है. सेम इज़ द केस विद दी उज्जय प्राणायाम ऑल्सो. सो जब आप विंड पाइप को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करेंगे द एनर्जी विल गो इनसाइड with much bigger force and it will reach to all the cells of our body. तो मैं पहले एक बार करके दिखाऊंगा, देन हम लोग साथ में करेंगे. इन उज्जय प्राणायाम not only we do the breathing but we also apply जालंधर बंद. So I will show it to you, then we'll do it together. एक मैंने लंबा सांस, नॉर्मल सांस अंदर लिया और छोड़ दिया. नाउ आई एम टेकिंग उज्जय ब्रेथ. जालंधर बंद. जालंधर बंद को रिलीज किया और राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करके श्वास को बाहर छोड़ दिया. दिस इज़ योर उज्जय प्राणायाम. तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं उज्जय प्राणायाम की. देखो हम जब छोटे थे ना तो हम लोग नेचुरली उज्जय प्राणायाम करते थे. अगर आपको याद होगा कि हम जाते जाते खड़े ऐसी बात को मतलब कोई कारण नहीं है बट वी डू इट लाइक दिस. 4-5 बच्चे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो आपस में कंपटीशन चालू हो जाएगा वो चारों पांचों बच्चों में कि कौन लंबा खींचता है. तो वो खुद नेचुरली दे विल डू उज्जय प्राणायाम. तो पहले प्रैक्टिस करेंगे. तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जस्ट डू इट विद मी. अच्छा, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप उज्जय सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो पोर्शन है ना, इफ़ यू डू उज्जय करेक्टली दिस पोर्शन विल गो इनसाइड. तो अगर आप यहाँ फिंगर रखें और करके देखें, अगर आपकी फिंगर दब जाती है तो आप समझिए आप उज्जय सही कर रहे हैं. you can feel that there is suction happening. There is suction happening at this point. वेरी गुड. और दूसरा, उज्जय करते समय अगर आपको खांसी आ गई तो पक्का मान के चलिए कि आप एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि उज्जय करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा इरिटेशन होगा एंड दैट इरिटेशन वो थोड़ा सा उसकी वजह से आपको खांसी आएगी. ठीक है. लंबा गहरा करना है मस्ती के साथ एकदम, है ना. और उसके बाद में नॉर्मल श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, फिर उज्जय श्वास लेंगे, पूरा भर के लेंगे और फिर जालंधर बंद लगाएंगे. रिमेंबर, जब आपने जालंधर बंद लगाया है तो नेचुरली आप श्वास को रोके हुए हैं, यू आर होल्डिंग दी
ब्रेथ और उसको होल्ड करें टू योर कन्वीनियंस। चूँकि हम ग्रुप में कर रहे हैं यहाँ, तो हम 20 के काउंट तक होल्ड करते हैं, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंटली करेंगे तो यू कैन होल्ड इट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन कन्वीनियंटली डू। और जब आपको लगे कि अब होल्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले जालंधर बंद को रिलीज़ करेंगे और उसके बाद में राइट नोस्ट्रिल से राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से जो श्वास आपने रोक के रखी हुई है उसको बाहर छोड़ देंगे। राइट, इज इट ओके? सो लेट्स डू इट टुगेदर एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। कीप योर बैक स्ट्रेट। सुखासन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, जिस भी आसन में बैठना चाहें आप बैठें। खाली आपकी पीठ को एकदम सीधा रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। इफ़ यू कांट मेक इट यू मस्ट फेक इट, बट यू मस्ट ऑलवेज हैव a smile on your face. And together we would do Ujjayi Pranayam 3 times. Take a normal breath in, ले एक लंबी गहरी श्वास अंदर और पूरे खाली हो जाएं। और अब उज्जय ब्रेथ। जालंधर बंद। जालंधर बंद को रिलीज़ करें। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दें। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत बढ़िया किया। लेट्स डू इट सेकेंड टाइम। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन और पूरे खाली हो जाएं। और अब उज्जय ब्रेथ। hold to your capacity when you are doing it on your own, and today when we are doing together, hold it for a count of 20 और उसके बाद में जालंधर बंद को रिलीज़ करें और उसके बाद में राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दें। लेट्स डू इट वन मोर टाइम टुगेदर। एक नॉर्मल ब्रेथ इन, पूरे खाली हो जाएं। उज्जय ब्रेथ। होल्ड टू अ काउंट ऑफ 20, होल्ड टू अ काउंट ऑफ 20 एंड उसके बाद में जालंधर बंद को रिलीज़ करें और राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ़्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दें। सो दिस इज़ योर उज्जय प्राणायाम एंड फैंटास्टिक, वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड, वेरी गुड। एंड वापस से एक बार थोड़ा से हम मुट्ठियों को मिला के घुमा लें दोनों तरफ और उसके बाद में शोल्डर्स की भी थोड़ी एक्सरसाइज करनी। एंड दिस इज जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम। एंड दोनों हाथों को एंड यू कैन ऑल्सो रोटेट योर upper body above your waist. Very nice, very good. So remember the sequence that we follow for practice of yoga, meditation and pranayam. You always start with yogasana, and after yogasana do pranayama, and after pranayama then you do meditation, and after meditation do Mangal Maitri. Mangal Maitri is what? Mangal Maitri is spreading or sending a goodwill message in this whole universe, and that is the prayer that we do, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. See, you know why India is referred as Guru of the world?
दिस नॉलेज सर्वे संतु निरामया, ये हिंदुस्तान में बात करते हैं। आप दुनिया में कहीं चले जाओ, कोई सर्वे संतु निरामय की बात नहीं करता। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, किसी भी हिस्से में चले जाओ। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी दी वर्ल्ड गुरु। वसुदेव कुटुंबकम ये हिंदुस्तान में ही है, ये हिंदू संस्कृति में ही है कि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, हिंदुस्तान में ही है। बाहर अगर आप किसी को बोलो वसुदेव कुटुंबकम, बोलेंगे वो क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, दे हैव नो आइडिया। इट्स ओनली इन इंडिया दैट वी थिंक फॉर एवरीवन, for everyone. And so after meditation what we do Mangal Maitri, and that is we send goodwill message to everybody, to the whole universe, कि दुनिया में सब शांत हों, खुश हों, प्रसन्न हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों. So that's the message that we speak after the meditation. So these are the 4 stages that you do. Typically, all these things that we are doing together, it should take you about an hour, but that 1 hour, remember, it charges you for the whole day. It charges you for the whole day. Yoga, meditation and pranayam, the best thing is it's a cash transaction. It's totally cash transaction. And when I say totally cash transaction, that means अभी आपने किया तो आपको शाम तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगेट 1 साल 2 साल 3 साल, शाम तक भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, दोपहर तक की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है. Right now you can feel that the level of energy has increased, and energy is what all of us need. So it's a cash transaction. So follow these steps, and now we come to the 3rd stage, and that is meditation. So we'll do meditation. और हम कौन सा मेडिटेशन करेंगे, वही जो हमने लास्ट टाइम किया था. ठीक है, सब लोगों को लैंग्वेज याद है कि भूल गए? देखो वो ऐसी लैंग्वेज है कि आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज भूल सकते हो, पर ये लैंग्वेज को आप भूल नहीं सकते. और ये लैंग्वेज ऐसी है कि 1 सेकेंड में समझ में आती है. तो क्या करेंगे, दिल खोल के. सी आई टेल यू समथिंग, लाइफ इज़ वेरी सिंपल, एंड इट इज़ रियली वेरी सिंपल. आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, आई एम नॉट कोटिंग फ्रॉम अ बुक और समथिंग. इट इज़ रियली सो सिंपल. इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस वी कॉम्प्लिकेटेड. और फिर हमारी हालत कैसी है, हमारी हालत अभिमन्यु जैसी है. हमको चक्र के अंदर जाना तो आता है, चक्र से बाहर निकलना नहीं आता. Yoga, meditation and pranayam are the tools to get you out of that chakra view. Only we have to practice it. तो क्या करना है, दिल खोल के पूरा खाली हो जाना है. ये जो तो जो नेगेटिविटीज़ है ना, इमोशनल नेगेटिविटीज यहाँ इकट्ठी रहती हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों की हैं, तो उसको क्लीन करना है पूरा खोल के, पूरे दिल खोल के, एकदम बिना कोई हेजिटेशन रखना नहीं है. खाली हो जाएंगे. उसके बाद में जब मैं बोलूँगा चेंज, तो उसमें आप लाफ्टर पोस्चर को मूव करेंगे. दिल खोल के हंसना है. इतनी भाग दौड़ करते हैं क्यों भाभी जी, किस लिए भाग दौड़ करते हैं? ताकि खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें. अगर जीवन में हंसी नहीं है, चलो नेचुरली नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आर्टिफिशियली तो कर सकते हैं. आर्टिफिशियली करने में तो कम से कम कोई कमतरता ही नहीं करने. और आपको एक सीक्रेट बता दूं कि आप असली हंस रहे हो कि नकली हंस रहे हो, आपके माइंड को ये नहीं समझता. तो अगर आप नकली भी हंस रहे हो तो आपका माइंड समझता है कि आप हंस रहे हो, असली हंस रहे हो. तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देता है. तो दिल खोल के हंसना है. आजू बाजू देखना नहीं है, क्योंकि हमको आजू बाजू वाले की ज़िंदगी जीनी नहीं है. हमको किसकी ज़िंदगी जीनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है. तो अपनी ज़िंदगी जीनी है तो ये देखना चाहिए कि बाकी लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, या फिर ये देखना चाहिए कि मैं हंस रहा हूँ कि नहीं हंस रहा हूँ. और मैं तो कहता हूँ ये भी मत देखो कि मैं हंस रहा हूँ कि नहीं हंस रहा हूँ. बिकम लाफ्टर ओनली. इतना 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 हंसो, इतना हंसो, इतना हंसो कि आपके शरीर की हर कोशिका हंसी ही बन जाए. जस्ट बी लाफ्टर ओनली. पूरी तरह से झोंक दो अपने आप को, है ना, पूरी तरह से दिल खोल के, दिल खोल के. और जब आपको लगे कि आवाज़ बाकी लोगों की कम हो रही है, बी अ लीडर. आपकी आवाज़ को बढ़ा दो, ताकि आपकी आवाज़ बढ़ेगी तो बाकी लोगों को उत्साह मिलेगा. अरे मैं पीछे रह रहा हूँ, तो सब लोगों ने. सो एक दूसरे को मदद करते हुए दोनों स्टेजेस में, पहली स्टेज में भी दूसरी स्टेज में, जब आप जिब्रिश करेंगे तो दिल खोल के निकालना है, दिल खोल के निकालना है, ढूंढ के निकालना है. अरे ये भी है, अरे ये भी है, अरे ये भी है. जो आते जाओ उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, पूरा खाली हो जाओ.
और उसमें मदद करेंगे एक दूसरे को। जैसे ही लगा कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, खुद का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। खुद का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बाकी लोग समझ जाएंगे कि भाई सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बाकी लोग भी अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, दोनों स्टेज में, जिब्रिश में भी और लाफ्टर में। उसके बाद मैं बोलूँगा स्टॉप, तो फिर स्टॉप हो जाएंगे और फिर ध्यान में उतरेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान में मैं आपको गाइड करूँगा और जैसा मैं गाइड करती जाऊँ वैसे आप करना है। उसके बाद में शांति पाठ के साथ में, दैट इज़ मंगल मैत्री के साथ में दिन की समाप्ति करेंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी एवरीबॉडी? ठीक है, एक लंबा गहरा श्वास अंदर ले लें और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर और पूरे खाली हो जाएं और जिब्रे शुरू करें। वेरी गुड, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अभी हमारी ये क्लास की फर्स्ट स्टेज हो गई लैंग्वेज की, जिब्रिश की पहली लैंग्वेज का फर्स्ट स्टेज हो गई। अभी हमको दूसरी स्टेज पे जाना है लैंग्वेज की। दूसरी स्टेज में क्या करना है, दूसरी स्टेज में आपको बात तो करनी ही करनी है, साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस भी करना है। एक्सप्रेस करना मतलब क्या, अगर आपका हाथ चलाने का मन करे तो आप हाथ ही चला सकते हैं, क्लियर। सो वो भी कर सकते हैं आप कर लिए ना। तो पूरी तरह से एक दिल खोल के सेकंड स्टेज पे प्रमोशन है, सो सेकंड स्टेज पे है ना। सो तैयार है सेकंड स्टेज के लिए सब लोग? सब दूर दूर बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बहुत फायदे की रहेगी आपको, एक है ना। मेरे को सिलेबस पहले पता ओके, सो फिर से एक बार आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास अंदर और भी सेकंड स्टेज पे उतरेंगे। और तेज और तेज और तेज और निकाल दे, पूरे खाली हो जाए, पूरे खाली हो जाए, पूरे खाली हो जाए, पूरे खाली हो जाए। और चेंज लाफ्टर। स्टॉप, रुक जाएं, थम जाएं, जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें और मन में और शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं
उन संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखें। साक्षी भाव मीनिंग एज अ विटनेस। विचार हैं, आपके मन में उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों को देखना है एज अ विटनेस, एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन। All the sensations which are arising in your body, be a witness of them. आपके पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, वो कैसी भी संवेदना हो, फुरफुराहट हो, सरसराहट हो, कपकपाहट हो, any sensation that is arising in your body, just watch it as a witness. And now take your attention on your breath. अपने ध्यान को अपनी श्वास पर लेके जाएं और देखना शुरू करें श्वास को आते हुए और जाते हुए। श्वास को देखना है आते हुए और जाते हुए। Watching your breath is living in the present, but it is possible that when you are watching your breath, your mind may take you somewhere in the past, or it will take you somewhere in future. Whenever that happens, become aware. जब भी आपका मन आपको भूतकाल में कहीं ले जाए या भविष्य में कहीं ले जाए, तो उसके प्रति सचेत हो जाएं और फिर से अपनी श्वास को देखना शुरू करें। कॉन्शियसली, विद अवेयरनेस, जागरूकता के साथ अपनी श्वास को देखना है आते हुए और जाते हुए। Meditation is nothing but being able to live in this moment. Meditation is nothing but being able to live in this moment. Inherently, all of us would either live in the past or live in the present. Our mind will always keep us oscillating between the past and the future. Past means regrets. Future means anxiety. Both of them give us stress. And that is the reason why people have stress in their life. In this moment, in this present moment, there is no anxiety, there is no regrets. There is only joy, only bliss. Only joy, only bliss. So what is meditation? It's a tool to live in the present with awareness. Keep watching your breath, coming in, going out. और जब भी कभी आपको लगे कि आपका मन भूतकाल में कहीं चला गया है, बिकम अवेयर और फिर से अपनी श्वास को, अपने ध्यान को अपनी श्वास के ऊपर लेके आ जाएं।
उसी तरह से जब भी आपको लगे कि आपका मन भविष्य में कहीं चला गया है, अगेन बिकम अवेयर, अगेन बिकम अवेयर एंड ब्रिंग योर अटेंशन बैक ऑन योर ब्रेथ। और जारी रखें श्वास को देखना, आते हुए और जाते हुए। Now you can do it independently. अब आप अपने आप इस ध्यान को कंटिन्यू रख सकते हैं। जागरूकता बनी रहे, जागरूकता बनी रहे, होश बना रहे। होश यानी कि क्या? होश यानी कि मुझे मेरा ध्यान मेरी श्वास पर केंद्रित रखना है, मुझे मेरी श्वास को देखना है, आते हुए और जाते हुए। ये होश बना रहे, दैट इज़ मेडिटेशन। पूर्ण जागरूकता के साथ देखते रहें अपनी श्वास को आते हुए और जाते हुए। जब भी कभी ऐसा लगे कि मन भूतकाल में कहीं चला गया है, बिकम अवेयर एंड ब्रिंग योर अटेंशन बैक ऑन योर ब्रेथ। और जब भी कभी ऐसा लगे कि आपका मन भविष्य में कहीं चला गया है, अगेन बिकम अवेयर एंड ब्रिंग योर अटेंशन बैक ऑन योर ब्रेथ। और जारी रखें होशपूर्वक, जागरूकता के साथ। सतत अपना ध्यान अपनी श्वास पर बनाए रखना ही मेडिटेशन है। ये एक लाइन को हमको आत्मसात करना है कि मुझे हर पल मेरी श्वास पर मेरा ध्यान केंद्रित रखना है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन। एक लंबा गहरा श्वास अंदर लें और छोड़ दें। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर लें और छोड़ दें। दोनों हाथों को मिला लें आपस में और दोनों हाथों को आपस में मिला के रब करें। और आप महसूस करेंगे कि जब आप अपने हाथों को रब करना शुरू किया तो आपके हाथों में एक वार्मथ है, एक गर्माहट है। सो दिस इज़ द एनर्जी दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग योर पाम्स। पास दिस energy to whole of your body by placing both your palms on your eyes। अपनी हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर रख लें, आँखों को अंदर से खोल लें। ओपन द आइज इनसाइड so that this energy is passed to whole of your body। और उसके बाद आँखों को बंद कर लें। चेहरे की हल्की सी मसाज करें। Do a light massage of your face। Do a light massage of your face। Do a light massage of both of your hands also। और अब उसके बाद हम शांति पाठ के साथ और मंगल भावना के साथ, मंगल मैत्री के साथ
आज के दिन की का समापन करेंगे। तो ये जो मंत्र है आप सभी मेरे साथ चैंट करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ मौद्यो शान्तिः, अन्तरिक्षये शान्तिः, पृथिवये शान्तिः, औषधये शान्तिः, वनस्पतये शान्तिः, आपा शान्तिः, विश्वदेव शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शान्ति समारिधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So friends, with this prayer, a small prayer to the Almighty, that all of us be happy, singing, dancing, celebrating, and also helping everyone in singing, dancing, celebrating, laughing, and enjoying their life. With this small prayer, we come to the close of this session. Thank you so much to every one of you. Thank you. Thank you. Thank you so much. You began. So, whenever we meet next time, that time we will do some more yogasana. We will learn yogasanas that we do on our stomach and the yogasanas that we do on our back. And we will also learn few new things next time when we met. So with this, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.